Recording in progress. All right. Chapter number 9 is ray optics and optical instruments. This is also called geometrical optics. So we are dealing with the light whose wavelength is ranging from 400 to 750. Optics means light, and light की जो visible part of the electromagnetic waves है अभी हम लोग डिस्कस किया था. Visible part is called light or optics, जिसकी wavelength है 400 से nearly 750 for violet 400 and red 750 near to 750, and it moves with the speed c is equal to 3 into 10 power 8. It is the highest possible attainable speed in the nature. इससे fast जो है no other object can move. Light is the fastest one. ठीक है? And we assume that light is moving in the straight line. Rectilinear motion we call it, because wavelength and amplitudes are very small as compared to the dimensions of mirror. Mirrors जो हैं, suppose we talk about the concave mirror, light की wavelength and amplitude इतना कम है, it is coming like this wave. So we cannot make out whether it is a straight line or wavy form. Wave का amplitude बहुत कम है, and wavelength is also small. So it will look like a straight line because dimensions of mirror and prism and lenses will be much bigger as compared to its parameters like wavelength and amplitude. ठीक है? तो rectilinear motion, straight line motion हम consider करते हैं when we are dealing light with the using the light on the mirrors and lenses, etc. ठीक है? तो path of light is called ray. जो path है light का उसको ray of light बोलेंगे. And combination of rays is called beam of light. कई सारी rays मिलके beam बनाएंगी. All right. So in this chapter we are going to see the phenomena called reflection and refraction, which you had done it in the 10th standard. तो यहाँ से फिर से repeat है. And optical instrument also. In that optical instrument में क्या है? Telescope, astronomical telescope, in which it will be dealt with the astronomical bodies, where doesn't make any difference image is inverted or erect. Inverted image बनती है astronomical telescope जो अपने course में we don't have to make it erect क्योंकि round objects हैं. अगर inverted बन भी रही है तो कोई problem नहीं. अर्थ के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो टेलीस्कोप यूज करते हैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, उसमें इसमें एक लेंस डालना पड़ता है जो इमेजेस को इरेक्ट करेगा, सीधा कर देगा, बीच में एक्स्ट्रा लेंस लगाना पड़ता है. दे आर नॉट इन अवर कोर्स, ओनली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है एंड माइक्रोस्कोप है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में. तो दैट विल सी एट द एंड. इसमें हम लोग पहले प्लेन मिरर्स देखने वाले हैं, फिर अगर उनको कर्व कर दे, I mean concave and convex mirrors, and then refraction phenomena and lenses and prism also. ठीक है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है बोलिए? अगर हमने कोई स्मूथ सरफेस ली, highly polished surface like mirror, if we incident ray on its surface, so it will be reflected in one particular direction. It is called regular reflection. तो एंगल ओके, पहले टर्म्स देख लेते हैं, बाद में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे. IR स्टैंड फॉर इंसिडेंट रे. दिस इज नॉर्मल, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. I is the angle of incidence measured with the normal. नॉर्मल के साथ मेजर करेंगे, है ना. R will be the angle of reflection, that also is measured with the normal. इसमें मेंशन नहीं करना पड़ेगा बार बार. I means angle of incidence counted or measured from the normal. और अगर इधर से दिया एंगल
तो that is called glancing angle. Some of the books write glancing angle is measured from the plane of the reflecting surface. कुछ बुक्स में ग्लांसिंग अगर ये एंगल दिया है तो हमें दोनों मिला के 90 होंगे. थीटा प्लस आई इज 90, therefore I will be 90 minus theta. But generally angle of incidence is measured given, so automatically it is with the normal, you don't have to do anything. ठीक है, clear? Angle of incidence. And what is the laws of reflection? Laws, दो law है, you know, simple one. एक तो angle of incidence is equal to angle of reflection, दोनों equal है. And second one is these all three, incident, reflected rays and normal, they are coplanar, एक plane में रहेंगे. Means reflected ray will not swing around, वो अपना plane नहीं छोड़ेगी. ये जिस plane में ये reflected ray will remain in that plane only. It will not turn left or right. It will not turn anywhere. It will hold its plane of normal and incident ray. Swing नहीं होगी वो. कोप्लेनर रहेंगे. If I is 0, R will be 0. है ना? अगर हम नॉर्मल इंसिडेंस करें तो I 0 कब होगा? नॉर्मल इंसिडेंस के लिए. रिफ्लेक्टेड रे विल रिट्रेस इट्स पाथ, अपने सेम पाथ से वापस चली जाएगी. In fact, it should be like this. If incident like this, I will be 0 और R will be, it will retrace its path. वापस उसी पाथ से आ जाएगी. Whenever any ray falls perpendicular to the reflecting surface, it will retrace its path. ठीक है, clear? Are you there? Yes, sir. Yes, तो sir. ये सिंपल लॉ आपको आते हैं पहले से. ये बताइए, अगर हमने ये कर्व्ड सरफेस है ऐसा और ऐसे रे इंसिडेंट की, तो वेयर विल इट गो? और इफ आई गिव यू अदर सिचुएशन, ये रे किधर जाएगी? In which direction this ray will go? बोलिए. ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऊपर जाएगी. It will come down or it will go back as it is. Law of reflection लगाना है every. Law of reflection. Try to get the normal there. यहाँ पे tangent डाल दिया ऐसा. Normal will be coming like this. तो same angle बनेगी, whatever angle it is, same angle it will make here. ऐसा है ना. और इसमें भी ऐसे ही try to search the normal here, ऐसा कुछ आएगा और ऐसे चली जाएगी. ठीक है, नॉर्मल ढूंढना है वहां पे. टेंटेटिव, यू डोंट हैव टू बी. ठीक है, यू टू सर्च नॉर्मल. यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, नॉर्मल पता होना चाहिए तो रफली ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर? तो ये ऐसा नहीं है इट विद इट ऑन इट विल गो एनीवेयर. तो एक रूल फॉलो करेगी, है ना. जैसे कॉन्वेक्स में पढ़ा है आपने, ऐसे कॉन्वेक्स मिरर में कैसे पढ़ा? लाइक दिस. एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर इट गोज लाइक दिस. क्यों इधर जाती? बिकॉज उसका नॉर्मल ऐसे कुछ आता है, ऐसे
स्फीयर कंप्लीट करो नॉर्मल लिमिट का, इट विल गो आउटवर्ड, डाइवर्जिंग हो जाती है, कॉनकेव में कन्वर्जिंग हो जाती है ना, तो दे फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड देन दे टर्न अकॉर्डिंग टू दैट। तो ऐसे किधर भी टर्न नहीं हो जाएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से टर्न होगी। माय क्वेश्चन इज दिस, ये देखो, based on the law of reflection, can you see this question? There are two mirrors, parallel mirrors हैं ये, separated by 0.2 meter, length of each mirror is 2√3. This is mirror A, this is mirror B. Incident light is at the edge of the one of the mirrors at 30-degree angle. Now it will undergo reflections, and after how many reflections it will come out of the system of the mirrors. That's what they are asking. क्या है क्वेश्चन? Maximum number of times the ray undergoes reflections, including the first one, before it emerges out. ठीक है, तो ये number of reflections निकाल सकते हैं, how many times it will undergo reflections. Can you do it in the homework? So homework में complete कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Okay, take down. You have to use the law of reflection to get the answer. Law of reflection use करके निकाल सकते हैं. Options भी नीचे दिए हैं आपको, 28, 30, 32, 34. पिक ले सकते हैं इसका. Done? Yes, sir. Yes. Okay. तो deviation, if I ask you how much ray gets deviated in reflection, suppose ये आपकी इंसिडेंट रे थी और इधर चली गई, तो उसका पाथ क्या था, ये वाला, कितनी टर्न हो गई, डेल, और डेल्टा यू कैन कॉल इट. एंटी क्लॉकवाइज कितनी टर्न हो गई, दिस मच. इधर से देखेंगे तो बिगर वन होगा, 360 में से माइनस कर सकते बाद में, बट दिस साइड स्मॉलर एंगल इज दिस. तो यहाँ ये कितना होगा, देखो इसको अगर हम नॉर्मल को इधर बढ़ा देते हैं, ये एंगल भी आपका आए रहेगा, अपोजिट एंगल है. तो ये भी आए है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये एंगल भी आए, और ज्योमेट्री से अपोजिट एंगल आए, तो तीनों एंगल मिला के 180 हो जाएंगे. All three angles put together are I plus del plus I is equal to pi. Therefore, del will be pi minus 2i. Getting? तो ये इतना डिवीजन हो गया, pi minus 2i. जितना एंगल है इंसिडेंस उसको डबल कर दो, और pi मीन्स 180 से माइनस कर दो, तो दैट विल बी डिवीजन वन वे, वन साइड से जो स्मॉलर है, अपने इस पाथ से इतना टर्न हो गई, और आई 60 डिग्री. तो ये कितना आएगा, 180 माइनस 120, 60 डिग्री डिवीजन हो जाएगा ऐसे. इधर से देखेंगे तो 300 में से माइनस कर, 360 में से माइनस कर दो. इधर से अगर चेक करना है, 360 माइनस दिस, तो पाई प्लस 2i आ जाएगा अदर साइड से. ठीक है, दीज आर द एक्स्ट्रा पॉइंट आई एम गिविंग यू, समटाइम्स यू मे नीड इट.
ठीक है। और ये क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रेट लाइन होगा, अगर हम डेल का आई के साथ ग्राफ ड्रा करें तो स्ट्रेट लाइन हैविंग द नेगेटिव स्लोप ऐसा कुछ आएगा। Here is the del, here is the I. If I is increased, del is decreased, है ना। I जब 0 है तब कितना डिवीजन है, ऐसे आई इंसिडेंट है, सॉरी ऐसे आई बाउंस बैक हो गई अपने इस पास से 180 डिग्री टर्न, है ना। It's coming like this, bouncing back. So it was from its original path, it had turned like this, 180 degree. The maximum is when I is 0, then it goes down. ठीक है, तो this thing may be required somewhere, particularly for those going for competitive examination. ठीक है, इसका application अगर चाहिए तो this is useful for JEE and NEET only. Boards के लिए they don't ask much from this plane mirror. JEE and NEET के लिए सपोज ये दो मिरर्स हैं, देखो inclined at angle theta. If we incident the ray at angle alpha with the normal on the first mirror, then it will undergo one deviation. यहाँ भी एक deviation होगा. Somewhere it will go like this. It was coming like this, going like this. इतना deviate हो गई. तो total deviation हम निकाल सकते हैं ऐड करके. First deviation is this much. यहाँ पे हमने एंगल बीटा लिया तो सेकेंड डिवीजन हो जाएगा, दोनों ऐड कर देंगे तो दिस मच इज द डिवीजन. ज्योमेट्री से हम अल्फा प्लस बीटा, ये जो इमेजनरी ये जो एंगल लिए हमने उसकी वैल्यू थीटा के टर्म्स में निकालें तो अल्फा प्लस थीटा विल बी अल्फा प्लस बीटा विल बी थीटा. यहाँ से देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये जो है ये ट्राइंगल बन रहा है अंदर, दिस एंगल विल बी पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा और ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये तो नॉर्मल है 90 डिग्री, ये भी 90 है, तो इन दोनों का सम भी पाई होगा कि नहीं. एंगल थीटा प्लस दिस एंगल, ये जो थर्ड एंगल है ये वाला, इतना बोथ पुट टुगेदर विल बी पाई, दैट कम्स टू बी थीटा. अल्फा प्लस बीटा इज थीटा. वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो नेट डिवीजन कम्स टू बी दिस मच. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसा लर्न कर सकते हैं. इफ डेरिवेशन नहीं भी समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इफ यू रिमेंबर द रिजल्ट दैट इज सफिशिएंट, है ना. तो ये इसमें ऑब्जर्व करो कि अल्फा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, डिपेंड्स अपॉन दिस एंगल, है ना. 2 पाई माइनस 2 थीटा आ रहा है इसका डेविएशन. नाउ इफ थीटा इज 90 डिग्री, इसका ये केस 90 डिग्री का केस जनरली दे आस्क, देखो 90 डिग्री पे बोलेंगे दोनों मिरर 90 डिग्री पे इंक्लाइन, तो व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर टू रिफ्लेक्शन. तो ये पुट कर दो थीटा 90 डिग्री पाई बाय 2 पुट कर दो यहाँ पर, इट कम्स पाई. So reflected ray is parallel to the incident ray, दोनों पैरेलल है, तो ऑप्शन दिया होगा रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल और रिफ्लेक्टेड रे इज 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे एंड सो ऑन. तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में. तो एंगल जो है अल्फा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये रिजल्ट थीटा पे डिपेंड कर रहा है. इफ यू चेंज द एंगल थीटा, रिफ्लेक्टेड रे का डेविएशन मतलब डिवीजन, नेट डिवीजन विल गेट चेंज. और इसको अगर बोलेंगे यहाँ पे 10 डिग्री था पहले और 20 डिग्री हो गया, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डिवीजन? नो डिवीजन, नो इफेक्ट ऑन द डिवीजन इफ यू इंक्रीज द अल्फा. दिस इज प्योरली फॉर JEE and NEET, not required for CBSE board because
इसमें प्लेन मिरर में ज्यादा कुछ पूछते नहीं है वो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज इनफ, दैट्स ऑल. There is one more question of plane mirror that we'll discuss. एक और टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, उसकी थियरी देखनी पड़ेगी. ऑलराइट, इमेज फॉर्मेशन आना चाहिए इसमें. देखो प्लेन मिरर में भी इमेज फॉर्मेशन देखिए कैसे. सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, so one ray we are taking perpendicular, that will bounce back. One more ray we can take it like this, it will go like this, है ना. ये इधर जा रही, ये इधर जा रही, बीच में गैप बढ़ रहा है, इधर तो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, उसको पीछे बढ़ाते हैं बैकवर्ड, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन मिलेगा, that will be image. Same distance पे, at whatever distance object is kept, same distance. When you stand in front of plane mirror, आपकी इमेज यहाँ पीछे दिखती है, सेम डिस्टेंस. इफ यू कम क्लोजर, इमेज विल कम क्लोजर. इफ यू टच द मिरर, इमेज विल आल्सो टच द मिरर. हाथ से टच करते जब मिरर को, तो अपनी इमेज भी वहीं पे आ जाती है, हैंड की इमेज. इफ यू टच इट, इट विल बी देयर ओनली. इफ यू डिक्रीज द डिस्टेंस, तो सेम डिस्टेंस पे बनेगी. इफ यू कम क्लोजर, इमेज विल कम क्लोजर. इफ यू गो अवे, इमेज विल गो अवे. और लाइन ज्वाइनिंग बोथ शुड इंटरसेक्ट द मिरर परपेंडिकुलरली. डिस्टेंस सेम होना सफिशिएंट नहीं है. जैसे मैं सिचुएशन दूं कि भाई यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और इमेज सेम, डिस्टेंस सेम है, इमेज यहाँ पे बनेगी क्या? आंसर इज नो. लाइन ज्वाइनिंग बोथ शुड इंटरसेक्ट द मिरर परपेंडिकुलरली. इधर कहीं पर आएगी, 90 डिग्री होना चाहिए. इधर सेम डिस्टेंस इज नॉट इनफ, डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए. लाइन ज्वाइनिंग शुड इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री. तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री है. तो दैट्स हाउ इमेज फॉर्मेशन इज डन इन द प्लेन मिरर एंड इन अदर मिरर आल्सो. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके ही करते हैं उसमें. डिस्टेंस में भी अनइक्वल इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर. ठीक. तो दिस इट मेक दिस मच डायग्राम. नीचे का छोड़ सकते हैं, ये सब उसी के ही है. अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो यू कैन टेक दिस रेज. एक रे यहाँ से ले लेंगे तो वो उसके फुट की इंटरसेक्शन देगा. तो लाइक दिस यू कैन मेक. तो ये सब इमेज फॉर्मेशन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से होगा. यहाँ पे रूल लिखा भी है मैंने, देखो. इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड लाइन ज्वाइनिंग बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज should intersect mirror at right angle. Got it? Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay. और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मैंने बता ही दिया ऐसे, या फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का. ऐसे देखो, वी कैन टेक अदर एग्जांपल. अगर सपोज ये ऑब्जेक्ट है ऐसा, लाइक दिस ऑब्जेक्ट, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ले लो इमेज, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ज्वाइन कर लो. इस पॉइंट का देख लो सेम डिस्टेंस, और इसका देख लो, ज्वाइन कर दो ऐसे. इरेक्ट इमेज है, बट लेटरल इन्वर्जन वी कॉल इट. लेफ्ट राइट का कंफ्यूजन होता है. लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट. अगर आप मिरर के सामने खड़े होते, लेफ्ट हैंड अपीयर्स टू बी राइट हैंड, so that we can say lateral inversion, but image is not inverted. Upside down नहीं है, head doesn't come down, legs doesn't go up. That is called inverted. No inversion of image take place, but lateral left right का confusion may take place. ठीक है. और एक और क्वेश्चन है, जैसे आपको अपनी पूरी इमेज देखने के लिए
मिरर हाफ ऑफ द हाइट की रिक्वायरमेंट होती है ना। सपोज दिस इज योर पोजीशन, ये आपका हेड है और ये आई लेवल है। तो यहाँ हेड से जो रेस चलेंगी यहाँ से टिप में टकरा के आईज में आएंगी, तो यू कैन सी योर हेड। टोस से जो रेस चल रही है वो आपको दिखेंगे ऐसे। तो यू कैन सी द टोस एट दिस एज एंड हेड एट दिस एज। तो अगर आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से देखें, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये आधा हो जाएगा उसका, और ये टोटल डिस्टेंस का आधा इतना हो जाएगा। दिस मच मिरर इज रिक्वायर्ड, h/2, half of the height of the object. Suppose this is the object, उसके आधी हाइट का मिरर लगेगा। बट इफ यू ब्रिंग इट क्लोजर देन आल्सो सेम, यहाँ पे लेके आएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, देन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विल अगेन बी देयर लाइक दिस। ठीक है, दूर लेके जाएंगे तभी भी। बट दिस एज ऑफ द टॉप एज ऑफ द मिरर शुड बी इन बिटवीन द हेड एंड आई लेवल। हेड एंड आई का जो लेवल है उसके बीच में होना चाहिए। अगर इसको ज्यादा ऊपर कर दिया तो टोज नजर नहीं आएंगे, नीचे कर दिया तो हेड नजर नहीं आएगा। तो वर्टिकल पोजीशन इज इंपॉर्टेंट एंड डिस्टेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना। ये आपने 10th में पढ़ा है, हाफ ऑफ द हाइट चाहिए मिरर की, h/2। ठीक है, तो यू कैन जस्ट रिमेम्बर द रिजल्ट। सपोज योर हाइट इज 6 feet, यू नीड द 3 feet मिरर इन वर्टिकल हाइट। विड्थ तो जितनी है कम से कम उतना विड्थ तो चाहिए आपको। विड्थ की बात नहीं हो रही, हाइट की बात हो रही। विड्थ के लिए भी एक रूल होता है, आईज के बीच में। फेस अगर आपको पूरा देखना है तो उसका अलग अलग रूल है, उसके लिए रे डायग्राम बना के हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कितनी विड्थ होगी। बिकॉज वी आर द टू आईज, तो दोनों आंख से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा के फेस विड्थ, फेस की जो विड्थ है, ईयर से ईयर तक की जो डिस्टेंस है उसका मिरर की कितनी विड्थ चाहिए, दैट कैन बी कैलकुलेटेड। दैट वी आर नॉट गोइंग, वी आर नॉट डिटरमाइनिंग नाउ। नाउ इमेज वेलोसिटी। सपोज आपने देखा यहाँ पे मिरर है, देखो ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से इधर मूव करेगा, इमेज सेम डिस्टेंस पे होगी, और वो अपोजिट मूव करेगी। ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी हो जाएगी, ये इमेज वेलोसिटी हो जाएगी। तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इमेज वेलोसिटी। स्पीड सेम रहती है ना, स्पीड क्यों सेम रहेगी? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ, आर यू देयर? तुम लोग हो लाइन पर? Yes, sir. Yes, sir. लॉ Yes, ऑफ sir. रिफ्लेक्शन Yes, रहेगा। sir. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से स्पीड विल बी सेम, इट हैज टू मूव दैट मच डिस्टेंस, है ना। तो स्पीड सेम रहेगी बट वेलोसिटी अपोजिट रहेगी, प्रोवाइडेड इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मिरर। अगर ऐसे मूव कर रही तो ये भी सेम। पैरेलल में कोई इफेक्ट, पैरेलल में मूव करे तो स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों सेम रहेंगे, और एंगल पे मूव कर रही तो ये कंपोनेंट माइनस हो जाएगा, ये कंपोनेंट सेम रहेगा, बिकॉज इसमें भी ऐसा आएगा। फिर पैरेलल कंपोनेंट डजंट चेंज, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज माइनस। गेटिंग इट नॉट? और रिलेटिव वेलोसिटी डबल हो जाएगी। अगर ये 5 से चल रही, ये भी 5 से आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 10। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, उसका मैग्नीट्यूड 10 हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव इंडिविजुअल वेलोसिटीज आर एडेड अप टू गेट द रिलेटिव वेलोसिटीज। ठीक है, तो ये पॉइंट है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये सब हटा दो इसको, दिस आर नॉट रिक्वायर्ड।
This is all not required. I have already explained. Parallel जा रहे हैं, तो no change, both are equal. परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा. अच्छा, परपेंडिकुलर क्या था यहाँ पर? हाँ, ठीक है. परपेंडिकुलर में VO VI, तो VO इज इक्वल टू माइनस VI. वेलोसिटी के टर्म्स में अपोजिट है ना. पैरेलल में सेम है. ओके, यहाँ पर देखो, इमेज वेलोसिटी इज अपोजिट टू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी. माइनस पैरेलल में दोनों इक्वल है ना. ऑलराइट, ये मैंने एग्जांपल दिया था. जब ऐसे जा रहे हैं तो 2i कैप इधर होगा और 3j कैप कंपोनेंट ऊपर होगा, तो ये ऐसे आएगा. 3j कैप वाला तो चेंज नहीं होगा, 2i कैप वाला अपोजिट हो जाएगा, तो माइनस 2i कैप हो जाएगी इमेज की वेलोसिटी, प्लस 3j कैप. ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज 2i कैप प्लस 3j कैप, इमेज वेलोसिटी विल बी माइनस, ये कंपोनेंट अपोजिट हो गया देखो, तो माइनस, और पैरेलल कंपोनेंट डजंट चेंज, तो वो प्लस 3j कैप ही रहा. तो लाइक दिस बेसिक क्वेश्चन, जस्ट कॉमन सेंस क्वेश्चन है ये. If it is there, you should be able to handle it. Generally, they are also not asked in the board examination. But this much common sense, we can use it and do it. Got it? Clear? Yes, sir. वो लाइन पर. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये हो गया. मतलब ये इसका एक क्वेश्चन है अपनी टेक्स्ट बुक में. देखो, इंसिडेंट रे इज लाइक दिस, रिफ्लेक्टेड रे इज लाइक दिस, नॉर्मल. क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय एंगल ट्वाइस ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर इफ इंसिडेंट रे इज फिक्स. सपोज हमने मिरर को ऐसे थीटा डिग्री टर्न कर दिया, तो ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे विल टर्न बाय 2 थीटा. अगर ये थीटा टर्न किया, तो ये प्रूव करना है. तो उसको अगर सिंपल ज्योमेट्री ले लें हम लोग, देखो Sir, you are not audible. ओके बेटा. Sir is doing the needful. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
Just a minute. Okay, see now. Sir, Faiz left the class, sir. अच्छा ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए. चलो ठीक है, क्वेश्चन नोट हो गया था. क्वेश्चन नोट किया था, देखो. See the question. Read the question. Just let me put the message. Just 5 more minutes. Will continue. You can do it with the geometry. देखो क्या क्वेश्चन है कि अगर हमने मिरर को टर्न किया बाय सम डिग्री, सपोज थीटा से टर्न किया, तो रिफ्लेक्टेड रे विल बी टर्निंग बाय 2 थीटा. तो देखो इसको ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हैं. इंसिडेंट रे यू डोंट हैव टू चेंज द इंसिडेंट रे, उसको फिक्स रखना है. तो व्हाट आई वाज शोइंग हियर, इसको सपोज सिंपलिसिटी के लिए 20-20 एंगल ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 10 डिग्री टर्न करते हैं. कैन यू सी? तो नॉर्मल भी 10 डिग्री टर्न हो जाएगा सेम डायरेक्शन में. नाउ इंसिडेंट रे विल मेक 10 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 10 डिग्री, है ना. ये एंगल 10 डिग्री रहेगा. ऑलराइट. तो इंसिडेंट रे भी ऐसे चल, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी. इनिशियली इट वाज गोइंग लाइक दिस, ये पोजीशन पे थी, यू कैन सी इट, ये ऐसे जा रही थी, अभी ऐसे जा रही है. तो इनिशियल नॉर्मल था, डिग्री टर्न हो गई. तो दैट्स हाउ यू कैन से, अगर हमने इसको 10 डिग्री टर्न किया तो रिफ्लेक्टेड रे 20 टर्न हो जाएगी. इधर टर्न किया हमने, रिफ्लेक्टेड रे इधर 20 टर्न हो जाएगी, है ना. अगर मिरर को हमने रोटेशन स्टार्ट किया से 10 रेडियन पर सेकंड से, तो रिफ्लेक्टेड रे विल आल्सो टर्न विद 10 रेडियन पर सेकंड. एंगुलर स्पीड में बात करें, एंगल अगर सेम टाइम में एंगल डबल हो रहा है तो एंगुलर स्पीड भी डबल हो रही. गेटिंग और नॉट? आर यू देयर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो यूजिंग दिस Yes. दिस sir. रिजल्ट, Yes, sir. ये क्वेश्चन है देखो आपका एनसीईआरटी बुक का. आई थिंक इट वाज आस्क्ड आल्सो इन सम ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. तो ये जस्ट रीड इट एंड डू इट. क्वेश्चन नंबर 37 होमवर्क में है. एंगल अगर स्मॉल है, देखो 3.5 है, अगर उसका डबल 7 डिग्री भी हो गया तो वी कैन यूज द एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना. sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना. या थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस ले सकते हैं, एंगल्स बीइंग स्मॉल. तो यू कैन जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड एंड डू इट. इसको पढ़ो, समझो और करो. विल डिस्कस टुमारो. ठीक है. 37th क्वेश्चन. ओके, ठीक है. That's all from my side. Any difficulty? Sir, can you scroll up?